اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ ایک واقعہ سنو۔ ایک گاؤں میں ایک میاں بیوی رہتے تھے جو علماء سے بڑی محبت کرتے تھے۔ کس سے؟ علماء سے۔ اور کرنا بھی چاہیے علماء سے محبت۔ اس وقت کے حالات میں جتنی فکر پورے روئے زمین میں علماء کر رہے ہیں، میرے رب کی قسم کوئی لیڈر کوئی گیدڑ نہیں کر رہا۔ لیکن کچھ کمظرف ایسے ہیں بجائے علماء سے محبت کرنے کے علماء کے پیچھے پڑے ہوئے۔ کیا کر رہی، کیا کھا رہی علماء؟ ایک صاحب پوچھ رہی، مولانا تمہارے صورت میں لاک ڈاؤن کا کیا بھی اثر دکھ رہا نہیں نا؟ کی بھائی لاک ڈاؤن کا اثر ہمارے چہروں میں اگر نہیں ہے تو یہ ہمارے رب کا کرم ہے۔ ٹوٹی پوٹی عبادتیں کر کر ہم لوگ اس رب کو منا رہے ہیں۔ کوئی وظیفہ نہیں چھوڑ رہے، الحمدللہ۔ فجر نہیں چھوڑ رہے، روز کا سورہ یاسین نہیں چھوڑ رہے، مغرب کے بعد کا سورہ واقعہ نہیں چھوٹ رہا ہمارا، الحمدللہ۔ صبح شام چلتے پھرتے استغفار ہمارے زبان کی عادت بن چکی ہے۔ اور میرا رب غیب سے فیصلے فرما رہا ہے تو تمہارے پیٹ میں جلن کیوں؟ تمہارے چہرے میں بھی اگر لاک ڈاؤن کا اثر نہ آنا ہے، وہ کام کرو جو علماء کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی پوری زندگی لاک ڈاؤن رہے گا، خدا تمہارے گھر کا چولہا سلگائے گا۔ غیب سے فیصلے۔ علماء سے محبت کرنے کی وجہ یہ حالت میں بھی علماء کیا پہن رہی، کیا کھا رہی، کہاں جا رہی، ان کے گھر کے شادیاں کیسے ہو رہی، شادیاں میں آنے والے عورتیں کیسے ہی، شادیاں میں پیپسی پی رہی کی، ہریرا پی رہی کی۔ اتنا کبھی تو کونسلر کے پیچھے پڑا؟ کتنے مسلمان ہیں جو قوم کے بڑے مانے جاتے ہیں، لاک ڈاؤن میں ابھی بھی شراب پی رہے ہیں۔ کل بھی ایک صاحب کا فون آ رہا، حضرت تمہارے گھر میں ٹی وی ہے کیا؟ کہتے ہیں ہاں رے باپ، ہر کمرے میں ہے۔ کیا کرتا؟ میرے گھر میں اگر ٹی وی ہو تو کیا میں تجھے جواب دینا ضروری ہے کہ اللہ کو جواب دینا؟ علماء کے گھر میں کیا ہے؟ کیا ہمارے گھر میں ٹی وی ہے نہیں ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ سوال کرنے والوں سے کہتا ہوں، ایک مرتبہ آ جاؤ اللہ کے گھر۔ جن علماء کے گھروں میں ٹی ویاں ہونے کا ڈاؤٹ ہے ان علماء کو بھی مسجد میں بلا لو، اللہ کے کلام کو سامنے رکھو، ہاتھ اللہ کے کلام پر رکھو، قسم اللہ کی کھائیں گے۔ یہ اپنی جگہ پر ہے۔ کبھی تم، تمہارے ماں باپ، تمہارے بیوی بچے، تمہارا کنبہ، تمہارے خاندان کے گھروں کا حال دیکھا؟ گھروں میں ٹی ویاں ہونا تو دور کی بات، تمہارے وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے گوگل کی دنیا میں جا کر کیا دیکھتے ہیں وہ ہم کو معلوم ہے۔ مولوی صاحبوں کے گھر میں ٹی وی ہے کیا؟
उलमा से मोहब्बत करो। थानवी फरमाते हैं अपने दौर के आलिम से मोहब्बत करना वक्त के नबी से मोहब्बत करने का अजर पाना है। बात गहरी हो रही है। मैं हाथ जोड़ कर कहता हूं किसी के पीछे न पड़ो। ये गुनहगार से गुनहगार के पीछे पड़ने की इजाजत नहीं है। तुम तो उलमा वारिसीन अंबिया के पीछे पड़ रहे हो, तुम्हारी आखिरत क्या होगी हमें डर है, क्योंकि तुम अगर इस हालत पर रहोगे तुम्हारा अंजाम क्या होगा तुम्हें पता नहीं। हमने जिन किताबों में पढ़ा है, किताबों के आईने में तुम्हारा अंजाम हमको नजर आ रहा है। खीफ अलैहिल कुफ्र, जो आलिम के पीछे पड़ता है, उलमा ने फरमाया है कि डर है कि वो कुफ्र की मौत मरेगा। अपने आखिरी वक्त को सामने रखो। अल्लाह हर मुसलमान की मग़फ़िरत फरमाए। मैं तो यही मेरे रब से दुआ कर रहा हूं कि परवरदिगार, तकदीर को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन हमारी तकदीरों को बदलने की ताकत तेरे पास है। मौत को रुका दे। ऐसे मौत का बाजार है इस वक्त, गुस्ल नसीब नहीं हो रहा है, अभी इबरत हासिल नहीं करे। जनाजे नमाज जनाजा नसीब नहीं हो रहा है, अभी नसीहत हासिल नहीं करे, इबरत हासिल नहीं करे। जिस अदब और एहतराम के साथ दफन करते थे, अगर कोरोना का लेबल लग गया तो क्या किस तरीके से दफन कर रहे हैं। इबरतनाक तदफीने देख कर भी अभी इबरत हासिल नहीं करे मुसलमान। उलमा के पीछे न पड़ो, उलमा के पीछे न पड़ो। मैं इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी अर्ज करूंगा, पहले भी मैंने कई जुमे उलमा के अदब और एहतराम पर अर्ज किया। यहाँ जितने नौजवान बैठे हैं, अगर दिलों में उलमा की मोहब्बत नहीं, आज से मोहब्बत पैदा करो। जिनके दिलों में उलमा की मोहब्बत है वो अपने मोहब्बत की हिफाजत करो। जिनके दिलों में उलमा की अदावत बग़्ज़ और इनाद है, हाथों को सैनिटाइजर से धोना कमाल नहीं है, दिलों को तौबा करके धोना कमाल है। हम आप लोगों से कितनी मोहब्बत करते हैं। हमारी मोहब्बत का, उलमा की मोहब्बत का यही आप सिला देंगे क्या? हजरत जुमे में बयान नहीं करते ना, हाँ भी बयान नहीं, छोड़ो एक जुम्मात ना घर में पढ़ लेंगे बोलकर, नहीं हजरत बयान नहीं सुने तो जुम्मात दिखता नहीं ना। खैर बयान मस्जिद उमर फारूक में आकर करे तो ज़रा मुझे दिल में तसल्ली होती। आऊँ तो कैसे आऊँ, कि मेरी अपनी बात बता रही, ये उलमा के जज्बात, खिदमात और मोहब्बत बता रहा हूँ। क्या अब नौजवान अगर जुमे के दिन हफ्ते में एक मरतबा बयान सुनते और रास्ते जब अल्लाह ताला दिया है तो इनको मायूस क्यों करना। बयान अगर इनकी ज़रूरत है, बयान इनकी ज़रूरत है, किसी सूरत से पहुँच कर बयान करना, जान हथेली में रख कर, पुलिस और पुलिस के डंडों से बेपरवाह होकर चलकर शिवाजी नगर से यहाँ तक आया। आधे रास्ते में आकर अल्लाह का बंदा लिया। हमें इतनी मोहब्बत करते हैं और हमारे ही पीछे पड़े हुए हैं। हमें क्या पी रही, क्या खा रही, कहाँ जा रही, कहाँ सो रही, ये तुम्हारा काम है। कल क़ियामत में मुज़म्मिल क्या पिया तुमसे सवाल होगा, मुज़म्मिल क्या खाया तुमसे सवाल होगा, मुज़म्मिल अपने बेटे की शादी कैसे किया तुमसे सवाल होगा, मुज़म्मिल अपनी बेटी की शादी कैसे किया तुमसे सवाल होगा। जो सवाल तुमसे होगा उसके पीछे पड़ो, जो सवाल तुमसे नहीं होगा उसके पीछे पड़कर दुनिया भी बर्बाद ना करो, आखिरत भी बर्बाद ना। अजीज साहब, अल्लाह ताला की कुदरत बड़ी गहरी कुदरत है। एक मस्जिद के सदर साहब एक मौलाना के बयान पर यह कहा, हो गई तकरीबन 15-20 साल पहले की बात, एक मौलाना के बयान पर यह कहा, क्या आज मिंबर में बैठ जाकर तो मैं
बमड़िया मारते सो कुत्ते भोगे सका भोगती सो बोलकर बोले। मरते वक्त उनके जुबान से कुत्ते के भोगने की आवाज आई। उलमा पेप्सी पिए तो पेप्सी पिए, पेप्सी पिए, पेप्सी पिए। पेप्सी हराम क्या? सिर्फ इस्राइल का प्रोडक्ट है। क्या है? इस्राइल का प्रोडक्ट है। मौली साहब पेप्सी पिए तो मौली साहब पेप्सी पिए बोलकर अटैक करने वाला कौन मालूम? जिसका चेहरा फिसल बंडा। तेरा चेहरा इस्राइल का प्रोडक्ट है, तुझे नजर नहीं आया? या तेरे घर में आईना नहीं है? पेप्सी पीना गुनाह नहीं है। जब पेप्सी पर पाबंदी की बातें लग रही थी, जब कोक पर पाबंदी की बातें लग रही थी, उस वक्त मैं मस्जिद सुबहानिया में खिदमत कर रहा था। उस वक्त मैंने कहा कि पेप्सी और कोको कोला या मिरिंडा या फैंटा बंद करने से इसराइल बंद नहीं होगा। इधर तुम नबी की सुन्नतों पर अमल करो, उधर इंशाअल्लाह इसराइल बर्बाद होगा।